Hello everyone and a very good morning to all of you and welcome to BYJU'S Exam Prep, the most comprehensive preparation app for all exams. As we all know, from Monday to Thursday 11 a.m. in the morning, we come up with the Hindu analysis. Today is 21st September, that is Thursday, and we are here with the Hindu analysis of Thursday. So agar meri awaaz aa rahi hai, just write in the comments, yes sir, you are audible. So these are the important articles. Today we'll be discussing about Lok Sabha passes historic women's reservation bill. Then we'll be discussing about census and delimitation work after Lok Sabha polls, says Mr. Amit Shah, Home Minister of India. Then India issues a tit for tat travel advisory for Canada. Awaaz aa rahi hai meri? Am I audible? Okay. So let's start with this one because it has been in the news for the past 1 or 2 days. The women reservation bill. So basically it was first introduced. कौन से year में introduce हुआ था? Women's reservation bill was first introduced in the year dash. बताइए. Okay, so basically it will provide 33% reservation to women in parliament and state legislature, like legislative assembly, है ना? So मतलब state level पर भी. Okay, so opposition wants bill to be delinked from delimitation and a quota within quota for OBCs. Home Minister promises to rectify shortcomings. Rectify मतलब correct करना, correct the shortcomings and all. Shortcoming मतलब जो कमी रह गई है. Okay, the shortage. Yes, so first it was started, the idea of women's reservation bill was first introduced in the year 1996. And since then, for the past, more than 26-27 years, we are seeing actually not able to pass this. But this time the Lok Sabha has passed it. But let's wait for Rajya Sabha. Okay. So basically, opposition का पहला कहना यह है कि delimitation से link नहीं किया जाए. मतलब the government has said कि once the delimitation commission is set up, the census is done, after that we will implement this. मतलब अभी नहीं implement होगा तुरंत, ठीक है, फौरन नहीं implement होगा. So once we have discussed it that by 2026 delimitation has been freezed and all, है ना? So and a quota within for OBC also. Like for example, I have told you, so if there are 543 seats and 1/3 will be 181, right? So the opposition is demanding that out of these 181, some of them should be reserved for OBC. मतलब I'm just giving example. Maybe they will say 30% or 33%. In इस 181 का 1/3 या 1/4 कुछ भी इस तरह होगा. I'm just giving example. So उसका कुछ जो है ऐसा वो OBC के लिए reserved होना चाहिए. This is what the opposition parties have demanded. Okay. दूसरी चीज they are saying कि they should not be linked with delimitation. वही कि जब 2026 के बाद delimitation commission बनेगा, then it will be set up. The women's reservation bill will be implemented. मतलब अभी implement नहीं होगा, ठीक है? So that is what the government has said, but the opposition is wanting this, ठीक है? So 27 years after women's reservation bill was first introduced in parliament. अच्छा कौन सा bill है? What is the name of the bill? Number कौन सा है? Yesterday I have discussed it. Yes, so a women's reservation bill was first introduced in Parliament. The Lok Sabha on Wednesday passed such a bill with near unanimity to amend the constitution and provided 1/3 reservation to women and all. है ना? So the bill now is in the Rajya Sabha now. ठीक है? So the special session is happening. The new parliament is there, and the first bill introduced in the new parliament is about 33% reservation and all. Historic legislation, says PM Modi. है ना? Okay. तो उसमें कौन सा है? 128. Very good. हाँ. So 128 constitutional amendment bill it is. Okay. And which requires 2/3 majority, so it was easily met. 2/3 majority से लोकसभा में लोगों ने सपोर्ट कर दिया, ठीक है? 2/3 present and voting है ना, present and voting. So मान लो अगर सारे लोग भी present है, 543, all the 543 is mentioned, so 2/3 कितना होगा? 181 into 2, so it will be around 362. So it needs at least 362 should support the voting, है ना? And maybe हो सकता है 362 ने वोट कर दिया साथ में, out of 362 out of 543. So they might have supported it. So that is why it has been passed. So then Mr. Home Minister, Mr. Amit Shah said, you support bill and reservation will be guaranteed and all. That is what he said. Okay. So ये सब बात हुई. Okay. She said there was no need to delay the implementation by linking it to a delimitation exercise that is frozen till 2026. So opposition में Ms. Sonia Gandhi actually spoke about it, and she said that there is no need to actually freeze till 2026. We should implement it just now. यानी फौरन implement कर देना चाहिए. वेट नहीं कर देना चाहिए 2026 तक. दूसरा जो सेकंड डिमांड वाज अबाउट कोटा विद इन द कोटा, दैट उस 1/3 में से सम परसेंटेज ऑफ सीट्स शुड बी रिजर्व्ड फॉर ओबीसी एज वेल, ओबीसी वुमेन. ओके, इज इट क्लियर? नाउ देखो, ये डेलिमिटेशन एक्सरसाइज जो एक्चुअली हुआ ये था, इसको फ्रीज कर दिया गया था. इसके पीछे रीजन कोई बता सकता है? व्हाई इट वाज फ्रीज्ड? एनीवन? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड फ्रीजिंग डिलिमिटेशन कमीशन? ठीक है,
इसका रीजन जो है अच्छा पहले आप इसको बताओ, फर्स्ट आंसर दिस। तो इसका रीजन ये था कि एक्चुअली है ना, दिस द स्टेट्स इन साउदर्न इंडिया वेयर कंट्रोलिंग पॉपुलेशन मोर इफेक्टिवली। तो साउथ इंडिया में पॉपुलेशन कंट्रोल ज्यादा इफेक्टिवली हो रहा था। And it says, the constitution says that MP and MLA should be proportional to the population. So technically उस हिसाब से if you keep on doing delimitation, the southern states will have less member of parliament and northern states will have more member of parliament. So it is a sort of a punishment for controlling population. आप समझ रहे हो? उसका वजह ये था कि अगर साउथ इंडिया जो है वो ज्यादा अच्छे से इंप्लीमेंट कर पा रहा था पॉपुलेशन कंट्रोल, तो उसको तो पनिशमेंट मिल जाएगा कि एमपी उसके कम हो जाएंगे इसलिए पॉपुलेशन कम है। Yes, because constitution says article 80, 81, 82 ऐसे पढ़ना, उसमें mention है कि it should be proportional to the population. Yes, so if the southern countries, states are controlling the population and they will be penalized for that, then of course it will be set a wrong precedent. So that is why during that time it was freezed. ठीक है, 543 का 543 और जो जिस स्टेट में जितना एमपी उतना ही रहेगा, that will not be changed. So फिर क्या हुआ था 84th constitutional amendment में this freezing change was extended till 2026. 2026 तक ये वाला को एक्सटेंड कर दिया गया। अब देखो 2026 के बाद क्या होता है। ओके, सो विल हैव टू सी व्हाट विल हैपन आफ्टर 2026. सो फर्स्ट सेंसस आफ्टर 2026, इसका मतलब कब होगा? 2031 में होगा। हाँ, इट मींस आप समझ लो जैसे 2011 देन 2021 में होना था, देन 2031. सो इट सेज कि आफ्टर 2026 then the first consensus that will be the idea, I mean that will be implemented in as a when we'll be doing delimitation and all. ठीक है, the first census after 2026 जो होगा 2031 वाला होगा। हाँ, ये किसी को नहीं पता था ना कि कोविड आ जाएगा और ये वाला भी डिले हो जाएगा। so we are yet to have 2021 census, the reason being the covid and all. तो अब देखो let's wait कि अगर 2021 वाला census अगर after election it is done or not, ठीक है, तो उसके हिसाब से we'll have to see, है ना। Okay, which ministry conducts a census? Since it is in the news, your options are Ministry of Statistics, Program Implementation, Ministry of Home Affairs, Ministry of Finance, Ministry of Labor and Employment. Your time starts now. बताइए। सबको लाइक बटन प्रेस कर दो। Everyone please press the like button. सर सनसेट क्लॉज क्या है बता देते हैं। I'll be coming to that. ठीक है, हाँ। मिनिस्ट्री कौन से मिनिस्ट्री जो है वो सेंसस कंडक्ट कराती है बताइए। सबको लाइक बटन प्रेस कर दो। यस, ओनली 6 लाइक्स, 30 प्लस लीजिए लाइक्स। यस, द राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये मैंने पहले भी बताया है। यस, नम्र आफ्ताब इज राइट, पतंजलि इज राइट, गौरी सेठी एसपी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, नॉट मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, देखो लिखा ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यही कंडक्ट कराती है सेंसस। ठीक है, इट्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। Okay, now that is why when he talked about census and delimitation, home minister talked about it because that is his domain. ठीक है, so union home minister Mr. Amit Shah said on Wednesday that irrespective of opposition support, the women's reservation will be implemented only after 2029. 2029 के बाद ही बता रहे कि सब implement होगा। ठीक है, so that is what they are saying it. तो most likely वो जो 2026 के बाद 2031 में होगा, शायद उसके बाद हो, मे बी। So let's wait, मतलब अभी इमीडिएटली नहीं इंप्लीमेंट होने जा रहा है। ठीक है, so 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और नारी शक्ति वंदना अधिनियम, दैट्स कॉल्ड इन हिंदी, so it reserve 1/3 seats for Lok Sabha and State Legislative Assembly. Okay, then it says he did not specify the dates for delayed census that was remained under ambiguity since 2021 despite apparatus being ready. तो उन्होंने डेट्स एग्जैक्टली नहीं बताया कि अब जो 2021 वाला सेंसस है वो कब होगा एग्जैक्टली डेट्स। ठीक है, because ideally it was supposed to happen in 2020 but 2020-21 ये सब disturbed year था ना because of COVID and all, so of course तो पहले तो जान बचाना important है rather than conducting census, so that is why census was not done, that is should be knowing it. ठीक है, okay, अच्छा कुछ लोग सनसेट क्लॉज वगैरह पूछ रहे हैं, तो अब जब एडिटोरियल डिस्कस करेंगे ना, एडिटोरियल आज का जो एडिटोरियल है, today's editorial we'll be discussing women's reservation after 5 or 10 minutes. So in there I will be discussing it. ठीक है, okay, now India issues a tit for tat travel advisory for Canada. Actually हुआ यह था कि recently Canada had issued a travel advisory for India. मतलब it said to its citizen that if you are a Canadian citizen going to India you should be careful. ठीक है, so they said some of the advisories and all. Similarly India issued travel advisory to Canada. tit for tat मतलब जवाब देते हुए, है ना।
So exercise utmost caution while traveling to India in advisory to citizen to Canada amid row and all. ठीक है, so यही सब बात है. So politically condoned violence and all. The announcement of Ministry of External Affairs came an hour after media reports suggested Canada has issued a travel advisory, especially for Jammu and Kashmir and all. Okay, however, the High Commission of Canada later clarified that the advisory has been in place since the summer of 2021. तो शुरू में ये बात आई थी कि कनाडा ने एडवाइजरी इशू किया है खास की जम्मू कश्मीर से रिलेटेड. फिर बाद में हाई कमीशन ने कहा कि ये तो 2021 से ही है, समर में तो वही मई जून 2021 से. सो सिंस 2021 this advisory regarding Kashmir is there. So that is what the High Commission of Canada has said. Okay. In view of anti-India activities and political condoned hate crimes and criminal violence in Canada, all Indian nationals there and those contemplating traveling are urged to exercise almost caution. Contemplating मतलब thinking. कोई सोच रहे कनाडा जाने के लिए तो वो ख्याल रखें अपना. I mean, they should be very careful if any Indian is thinking to travel to Canada. That is what they have said. Okay. ओके देन ठीक है, इसको हो गया. फिर एक और स्टेट पेज में हमको एक आर्टिकल देखिए, इसको भी थोड़ा सा देख लेना. स्ट्रेन टाइज विद कनाडा लाइकली टू हिट हॉस्पिटैलिटी सेक्टर. हॉस्पिटैलिटी मतलब क्या होता है? टूरिज्म. ये हॉस्पिटल वाला नहीं है, टूरिज्म. इट्स मींस इट इज नॉट रिलेटेड विद हॉस्पिटैलिटी. मतलब जो होता है ना कि हाँ टूरिज्म, लोग बाहर से आए. हाँ, वन ऑफ द एस्पेक्ट कैन बी हेल्थ टूरिज्म. यस, एजुकेशन टूरिज्म, हेल्थ टूरिज्म होता है. तो लोग आते हैं बाहर से कनाडा से एंड ऑल. सो इट्स कैनेडियन टूरिस्ट विजिटिंग केरला. ठीक है, तो कनाडा इज वन ऑफ द टॉप 10 कंट्रीज टू कंट्रीब्यूट टू फॉरेन टूरिस्ट ट्रैवल इन केरला. देखो फॉरेन टूरिस्ट जब आते हैं इंडिया में, सो व्हाट इज द बेनिफिट? इंडिया को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मिलता है. ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा क्या होता है? उसके बाद होता है जॉब क्रिएशन होता है ना. सो एक एस्पेक्ट ये होता है कि टूरिज्म इज अ वेरी गुड थिंग बिकॉज, और टूरिज्म जो कंसिडर्ड एज, टूरिज्म को क्या माना जाता है? इट्स कंसिडर्ड एज लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री. सो दिस इज टू काउंटर द जॉबलेस ग्रोथ. जॉबलेस ग्रोथ जानते हो ना, मतलब ग्रोथ हो रहा है लेकिन जॉब नहीं क्रिएशन हो रहा है. तो उसके लिए सॉल्यूशन दिया था लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री. एंड वन ऑफ द एग्जांपल इज टूरिज्म. तो टूरिज्म हमेशा कंट्री प्रमोट करती है बिकॉज इट क्रिएट्स जॉब्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एंड ऑल, है ना. सो दैट इज जनरली गुड फॉर कंट्री. बट यहाँ पे बता रहे हैं कि शायद हो सकता है जब इंडिया कनाडा के रिलेशंस जो नीचे चले गए तो शायद मे बी इट माइट अफेक्ट दीज थिंग्स एंड ऑल. खैर, इसको तो पढ़ लेना, जस्ट गो एंड सी इट, है ना. So that is what they are saying. So Kerala receives around 25 to 30,000 Canadian tourists every year and all. That is what they are saying it. Okay. Now before moving on from 22nd September, 22nd यानी कल से, we'll be having from 22nd September to 1st October all India open mock, है ना, CLAT and all. So please attempt it. Everyone should attempt it. That would be very very beneficial for you. And how to get an NLU call 24th September को at 6 p.m. We'll be having session with Nivedita ma'am. Okay. So do join it on our app. Go download our app, go to CLAT section and join it. 24th September 6 p.m. ठीक है. और ये 2025 का नेक्स्ट ईयर का कोर्स है. Anyone is interested in next year's course, he or she can go for it. Call on this number 95388 95678. Yes. Okay, let's start with the editorial. हाँ, किसी ने लिखा सर अतिथि देवो भव. हाँ, yes. This is related with. This is related with. Receiving guests, है ना. इसका मतलब कोई बता सकता है? Yes, someone has written अतिथि देवो भव. What is the meaning of this? Okay, now so let's start. Take a giant leap for a new ethics in outer space. अब देखो ये क्या है? He is talking about ethics. Ethics मतलब क्या होता है? Values, है ना, यानी ethical, moral values and all, right, है ना, moral principles in outer space. अब देखो क्या होता है? Nowadays we are talking about outer space because there can be wars in outer space. और देयर माइट बी न्यूक्लियर वॉर्स माइट हैपन, गॉड फॉरबिड, इन आउटर स्पेस. तो उसके लिए बहुत सारे ट्रीटी, आउटर स्पेस ट्रीटी, मून एग्रीमेंट एंड ऑल. हाँ, यस गौरी सेट्टी, वेरी गुड. हाँ, सो यू आर राइट. अतिथि देवो भव, गेस्ट आर लाइक गॉड्स. हाँ, यस मानो. हाँ, सो टेकिंग अ जायंट लीप फॉर न्यू एथिक्स. देखो इन्होंने थोड़ा सा मतलब टफ लैंग्वेज यूज किया है. ही हैज गॉन स्लाइटली मींस टू डिफरेंट प्लेसेस. बहुत सारे एग्जांपल्स, वो आपके काम का नहीं होता. ठीक है, तो इतना डिटेल सब नहीं पढ़ना था, पर जो चीज काम की वो मैं आपको बता देता हूँ. ठीक है, एक आउटर स्पेस ट्रीटी है, 1967 में साइन हुआ था. So this deals with actually principles governing the activities of states and all, signed in 1967 to actually ensure that war should not happen at space level. They're going to after development of intercontinental ballistic missiles, which would reach to the target through outer space. The Soviet launched Sputnik, the first artificial satellite and all. अब देखो एक्चुअली हुआ था क्या है. देखो ये है सोलर सिस्टम. ठीक है, हम लोग कहाँ पे हैं? Here is Earth. ठीक है, वो छोटा सा अर्थ यहाँ पे दिख रहा है. सो दिस इज अर्थ. मान लो यहाँ से किसी ने अपना सैटेलाइट लॉन्च किया है. यहाँ पे सैटेलाइट है, यहाँ पे है.
अब किसी और कंट्री ने मिसाइल से उसका सैटेलाइट मार दिया, maybe I mean till now it has not happened but yes it might happen in the future. तो इसी को प्रोहिबिट करने के लिए कि वॉर्स और मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस शुड नॉट हैपन, मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस जिसको कहते हैं, शुड नॉट हैपन। एक तो दुनिया में लड़ रहे हैं, आसमान में भी जाके लड़ रहे हैं, स्पेस में भी जाके, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो ह्यूमन शुड नॉट स्टार्ट फाइटिंग वॉर इन द मिलिट्री इन द स्पेस, ओके। तो यहाँ पार्टीज है, तो कोई सब पार्टीज कौन कौन है, डार्क ब्लू देखो, इंडिया इज अ पार्टी, देन मोस्टली देखो ये सब सारे है, रशिया है, चाइना है, यूएस है, कनाडा है, मेक्सिको है, सब दीज आर द पार्टीज, ओके। सो फॉर दैट आउटर स्पेस ट्रीटी वाज साइंड टू एंश्योर, आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 टू एंश्योर दैट मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस शुड नॉट हैपन, है ना। तो उसी के बारे में उन्होंने बात किया इस पूरे में, ठीक है। अब इसमें हिस्ट्री में क्या है उतना डिटेल आपको जाना नहीं है, इसलिए ना कि मान लिया किसी ने लॉन्च किया, कोई दुश्मनी में उसका सैटेलाइट गिरा दिया, ICBM से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और बहुत सारे टेक्नोलॉजी आ गए नॉवडेज, सो दैट इज व्हाई इट वाज देयर। हाँ, सो एक और है मून अग्रीमेंट भी, वो भी एक सेम चीज है, मतलब टू एंश्योर दैट मून शुड नॉट बी यूज फॉर वॉर्स एंड अदर पर्पस, ठीक है। सो पीसफुल पर्पस के लिए यूज किया जाए, उसको कैसे डील किया जाए एंड ऑल दैट इज व्हाट इट इज। हाँ, ठीक है। सो जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट दिस, ओके। हाँ, वो आउटर स्पेस ट्रीटी के साथ साथ ये भी माना जाता है, ठीक है, 1979 मून ट्रीटी एंड ऑल, ओके। नाउ साइड में वुमेन्स रिजर्वेशन बिल मस्ट बी इंप्लीमेंटेड विदाउट डिले। हाँ देखो, ये ऑथर भी कह रहे हैं कि डिले नहीं होना चाहिए। अभी रिसेंटली वी हैव टॉक्ड दैट इट माइट बी इंप्लीमेंटेड आफ्टर 29 और आफ्टर 2026 एंड ऑल, मतलब अभी नहीं इंप्लीमेंट होगा, बट द ऑथर्स ऑफ द हिंदू एडिटर्स आर सेइंग इट शुड बी इंप्लीमेंटेड विदाउट डिले, बिकॉज वी आर हैविंग 14.39% कुछ है ना लोकसभा एमपीज, सो इट विल मतलब 15 मान लिया हम लोगों ने, so but it needs to be increased to at least 33%, that is what they have said. 120th constitutional amendment bill or the Nari Shakti Vandanam Adhiniyam seeks to amend this by reserving 1/3 seats and all, ठीक है। Now which of the following SDG talks about gender equality? Your options are SDG 3, SDG 5, SDG 7, SDG 10. What is the right answer to this question? Alien skeleton found in Peru, हाँ लास्ट क्लास में हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया था, मेक्सिको, पेरू एंड ऑल। हाँ यस, एसडीजी, कौन सा एसडीजी? जेंडर इक्वालिटी की बात करता है, या वुमेन एम्पावरमेंट भी अगर लिखा है तो चलेगा। सो बी इज द राइट आंसर, एसडीजी 5 है ना, जेंडर इक्वालिटी। एक एसडीजी 10 भी रिड्यूस इनइक्वालिटी, लेकिन ये हर तरह की इनइक्वालिटी हो सकता है, मतलब जेंडर एंड अदर एस्पेक्ट्स आल्सो, और ये स्पेशली जेंडर इक्वालिटी के लिए एसडीजी 5 बात करता है, ठीक है। सो टारगेट का भी 2030 टारगेट है, एसडीजी वाज मेड इन 2015 एंड द टारगेट इज टू बी अचीव्ड बाय 2030, ठीक है। सो बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, विद वुमेन मेंबर्स एंड ऑल 15%, and we need to there is a gender inequality and all। हाँ, अब आज इस जमाने में ये पूछ सकते हैं जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स कितना है, बताइए तो। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स इंडिया कितना है, रैंक, एंड हु कम्स अप विद दिस रिपोर्ट, ये सब पढ़ लीजिएगा, बिकॉज चूंकि जेंडर इक्वालिटी की बात हो रही है ना, सो दे विल आस्क दीस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे पूछ रहे हैं सर ये 15 ईयर सनसेट क्लॉज क्या होता है। अब आप इसको ना थोड़ा सा लॉजिक समझो, सनसेट का मतलब क्या होता है, सूरज जो होता है डूब जाता है, so it is for temporary purpose only for 15 years। हाँ, ये कहने का मतलब है। yes, 127 very good, gender equality index में इंडिया रैंक इज 127। 15 ईयर सनसेट क्लॉज का मतलब है कि बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली अगर इसको एक्सटेंड नहीं किया गया तो 15 ईयर्स बाद खत्म हो जाएगा, दैट्स द मीनिंग ऑफ इट, ओके। सो देखो, इट सेज हियर इज द हाईलाइट ऑफ द बिल, 120th अमेंडमेंट बिल सीक्स टू रिजर्व 1/3 सीट्स एंड ऑल, तो पुराना 2008 में भी बात हुई थी ये वाली बिल की, ठीक है। So for women shall exist 15 years, देखो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल maybe I am just guessing, let's say it was implemented in 2031, so by default if the parliament does not approves it further, by default in 2046 the reservation will be ended, ठीक है। अगर 15 साल बाद, जैसे मान लो 2031 में इंप्लीमेंट हुआ और 15 साल बाद 2046 में खत्म हो गया, 2046 में पार्लियामेंट ने एक्सटेंड नहीं किया तो अपने आप खत्म हो जाएगा। सो सनसेट क्लॉज मींस बाय डिफॉल्ट आफ्टर 15 इयर्स दिस विल बी गॉन, ओके, इट विल नो मोर एग्जिस्ट अनलेस एंड अनटिल इट पासेस सेपरेट बिल टू सपोर्ट इट एंड ऑल फॉर द नेक्स्ट 15 इयर्स और व्हाटएवर इट इज, ठीक है। हाँ, इट मे और मे नॉट बी एक्सटेंडेड, इट डिपेंड्स अपॉन पार्लियामेंट, उस टाइम पे पार्लियामेंट में बिल पास हो जाए उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। सो जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट इट। Considering the fraught history of the struggle for women's reservation, several false starts despite Rajya Sabha passing it in 2010, it is mandated already and all। तो राज्यसभा में 2010 में पास किया था, लेकिन हो सकता है लोकसभा में उस टाइम पे नहीं हुआ। It is mandated that the first bill to be introduced in the new Sanसद Bhavan has been passed in Lok Sabha।
तो ये बहुत प्रेज वर्दी है, लॉडेटरी मतलब प्रेज वर्दी, तारीफ के लायक है कि जो पहला बिल है लोकसभा में पेश हुआ नई पार्लियामेंट में, वो पास हो गया. But its implementation will be delayed and it has tied to two factors, the delimitation and census. तो ये बताया गया कि डिलेड होगा और दो रीजन से, सेंसस और डिलिमिटेशन कमीशन की से फैक्टर, ये दो फैक्टर इससे उसको टाई कर दिए गए, यानी दोनों चीज होगी उसके बाद ही. ओके, सो इट विल नॉट बी इम्प्लीमेंटेड जस्ट नाउ, दैट इज व्हाट इट सेज, है ना. तो अब ये बता रहे हैं कि 2024 इलेक्शन में 33% रिजर्वेशन नहीं होगा मोस्ट लाइकली, है ना. सो जो नेक्स्ट जो इलेक्शन होने जा रहा है 2024 में, इसमें 33% रिजर्वेशन विल नॉट बी देयर, है ना, फॉर वुमेन, बिकॉज ऑफ कोर्स दे हैव टॉक कि जब तक सेंसस नहीं होगा और डिलिमिटेशन नहीं होगा तब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा. The bill also mandates that 1/3 seats of the reserve for SC/ST women also will be. हाँ देखो इसमें ये लिखा है, the opposition is demanding reservation for OBCs also. तो अब क्या है कि जैसे 543 का 1/3 कितना होगा 181, इसमें का जो है ना 33% वो SC/ST के लिए रिजर्व होगा. तो इसका 33 कितना होगा, 1/3 निकालो तो 181 का 1/3 करो तो 60 के राउंड आएगा, है ना, 60 पॉइंट समथिंग आएगा. इसका तो 181 में से 60 सीट्स विल बी फॉर SC/ST वुमेन, समझ गए. तो अब ऑपोजिशन ने कहा कि ओबीसी के लिए भी रिजर्व कीजिए, जो बाकी 121 बचा ना उसमें से कुछ सीट्स ओबीसी वुमेन के लिए भी रिजर्व कीजिए. दैट इज व्हाट देयर डिमांड इज, है ना. ओके, सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग इट. ठीक है, बहुत सारे स्टेट्स में 50% वुमेन रिजर्वेशन है. आई होप यू आर अवेयर ऑफ दैट. जैसे फॉर एग्जांपल द स्टेट ऑफ बिहार हैज 50% रिजर्वेशन एट स्टेट लेवल, मतलब स्टेट लेवल इन द सेंस पंचायत वगैरह में वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एमपीज और एमएलएज. ठीक है, ये जो है ना ये एमपी एमएलए के लिए बिल है. ठीक है, दिस इज फॉर पंचायत, थर्ड टियर गवर्नमेंट. सो 50% सिक्किम में 40% है ना. बट कॉन्स्टिट्यूशन सेज मिनिमम 33% होना चाहिए पंचायत में. शायद आपको पता होगा ये, देखो 243D talks about reservation of seats, है ना, for scheduled caste and scheduled tribe for the proportional in पंचायत, जितनी आबादी उस हिसाब से in पंचायत. We are talking about पंचायत here now. ठीक है, but for women 1/3 for women. ठीक है, सो पंचायत में 33% रिजर्वेशन मिनिमम है, नॉट लेस देन, मतलब मिनिमम 1/3. सो द बिहार गवर्नमेंट हैज गॉन वन स्टेप अहेड, इंस्टेड ऑफ 33% इट हैज गिवन मोर 50%. ठीक है, मतलब 33% नहीं बल्कि इसमें मिनिमम लिखा है, नहीं इससे ज्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन कम से कम 33% पंचायत में महिला को देना है, वुमेन को. ठीक है, तो द बिहार गवर्नमेंट हैज गिवन 50%, सिक्किम हैज गिवन 40% एंड ऑल. ठीक है, ठीक है, दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग इट. अब इस बात को लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में भी इंप्लीमेंट करने की बात हो रही है. ठीक है, ओके, यस, दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग अबाउट इट, है ना. तो फिर वुमेन स्ट्रगल की बात कर रहे हैं, इंडिया फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन काफी कम है एंड ऑल, दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग अबाउट इट. ओके, वियतनाम की पीसेस ऑफ अमेरिकाज इंडिया पैसिफिक पजल एंड ऑल. अब देखो ये है वियतनाम, देखो यहाँ पर है इंडिया, दिस इज वियतनाम. Now, दो तीन रीजन से इंपॉर्टेंट है. द फर्स्ट थिंग, व्हेन G20 समिट हैपेंड, जस्ट आफ्टर इट जो बाइडेन वेंट टू द वियतनाम, आपको शायद पता होगा. सेकेंड थिंग, एक्चुअली वो बता ये रहे हैं कि वियतनाम जो है ना, इसमें वॉर हुई थी. आई होप यू आर अवेयर ऑफ इट. नॉर्थ वियतनाम वर्सेस साउथ वियतनाम वॉर 1955 से 1975 तक चली थी. सो इसमें यूएस वाज आल्सो अ पार्टी एंड यूएसएसआर वाज आल्सो अ पार्टी. शायद आप लोगों को पता होगा, मे बी मेनी ऑफ यू माइट बी नोइंग इट. इसमें इतना डिटेल नहीं जाना, ये कोल्ड वॉर का एक एस्पेक्ट था ना, सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग इट. ओके, तो इसी तरह की बात हुई. अब देखो क्या है ना कि वियतनाम यूएस चाहता है, यूएस वांट्स इट शुड बी इन इट्स क्लोजर टू यूएसए एंड बगल में चाइना भी है. ठीक है, तो ये टसल होता है कि वियतनाम शुड बी प्रो चाइना और प्रो यूएस. दैट इज द आइडिया अबाउट इट. हाँ, वियतनाम में सेमीकंडक्टर्स वगैरह होते हैं, लिथियम्स वगैरह होते हैं. यस, वेरी गुड. हाँ, फिर एक्चुअली क्या हो, यस, समवन इज राइटिंग सर, पेरिस अकॉर्ड 1973 में पेरिस अकॉर्ड जो हुआ था उसका 50 ईयर्स अभी कंप्लीट हुआ है 2023 में. ठीक है, वही वॉर इन होने का, सो दे आर टॉकिंग अबाउट दैट. और दूसरी वजह साउथ चाइना सी, इसमें कई बार डिस्प्यूट होता है, स्प्रैटली आइलैंड, पारासेल आइलैंड डिस्प्यूट्स एंड ऑल, है ना. सो दैट इज आल्सो थिंग एंड ऑल. ठीक है, सो 50 साल कंप्लीट हुआ टू एंड द वियतनाम वॉर. एक्चुअली वियतनाम वॉर 1975 में एंड हुआ, बट यस इट एंडेड 1973 में एग्रीमेंट वाज साइंड फॉर दिस एंड ऑल. ठीक है, ये सब बात हो रही है. ओके, so in 2020 the total volume of trades between US and Vietnam is $92.2 billion and exceeds $138.2 billion. ठीक है ना, तो ये सब बता रहे, इतना नंबर्स नहीं याद रखना, वो आपके लिए नहीं होता. ठीक है, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच हुआ था. इट वाज डिवाइडेड बाय विच पैरेलल, 10 डिग्री पैरेलल, 17 डिग्री, 21 डिग्री, नन ऑफ द अबव. हाँ, 9 डैश लाइन इज इन साउथ चाइना सी. यस, तो नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम था. सो नॉर्थ वियतनाम वाज सपोर्टेड बाय यूएसएसआर, कम्युनिस्ट कंट्रीज, है ना. साउथ वियतनाम वाज सपोर्टेड बाय यूएसए.
सो फाइनली क्या हुआ कि नॉर्थ वियतनाम ही एक्चुअली भारी पड़ गया है ना 1975 में ऑल. नाउ प्लीज टेल मी, एक ये बताओ, दूसरा चीज ये बताओ, हु वाज इंस्ट्रूमेंटल इन दिस, द पर्सन हु इज कंसीडर्ड एज यू कैन से फादर ऑफ नेशन ऑफ वियतनाम, उनका नाम कोई बता सकता है? ये बताओ. नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम वाज डिवाइडेड बाय 17 डिग्री पैरेलल. बी इज द राइट आंसर. यस मानो, बी इज द राइट आंसर. हाँ देखो यहाँ पर ये 0 डिग्री इक्वेटर जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे 17 डिग्री पैरेलल जाएगा. 17 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है ना, अरे 17 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड हुआ ना. ओके यस. सो ये नॉर्थ वियतनाम था और ये साउथ वियतनाम था, ठीक है. सो फाइनली नॉर्थ वियतनाम एक्चुअली ओवरपावर्ड साउथ वियतनाम, फिर एक वियतनाम बन गया. लंबी चौड़ी हिस्ट्री है. नाउ प्लीज टेल मी हु वाज इंस्ट्रूमेंटल इन दिस द वॉर एंड ऑल. फादर ऑफ नेशन ऑफ वियतनाम. यस वेरी गुड मानो. हाँ हो ची मिन. हो ची मिन सिटी भी है आई थिंक. हो ची मिन इज अ रोड इन दिल्ली ऑल्सो. मैंने देखा है, हमको याद आ रहा है कुछ. देयर इज अ रोड इन दिल्ली, हो ची मिन रोड. यस हो ची मिन एक्चुअली Vietnamese communist revolutionary nationalist and all. ठीक है, तो इसको just have a read about it. Yes, you should be knowing it. बस basic idea होना चाहिए. That is what they are talking about and all. ठीक है. US Vietnam relations is not rapidly expanding. It's bilateral spectrum and all. Science, technology, health, digital innovation and all, है ना. So that is what you should be knowing about it. ठीक है. फिर इधर से कि चाइना से भी इंप्रूवमेंट हो रहा है रिलेशन. सो दैट इज एक्चुअली प्रो चाइना वर्सेस प्रो यूएस. किधर जाना है वियतनाम को, दैट्स एन इशू एंड ऑल. ठीक है. तो जस्ट हनोई चिप मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल. तो जैसे ताइवान है, वियतनाम है, दीज आर वेरी हेल्पफुल फॉर यूएस इन चिप मेकिंग. और चिप आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स का जमाना है, तो चिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. देन वी हैव आईसेट इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, है ना. ये मैंने कल डिस्कस किया था, इसको पढ़िएगा जाके. इसमें एक्चुअली देयर विल बी कोलैबोरेशन और कोऑर्डिनेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी, है ना. और भी बहुत सारी चीजें आजकल जितना भी एडवांस टेक्नोलॉजीज आया ना. तो कोई इन्होंने फैक्ट शीट भी डाली है व्हाइट हाउस ने. सो और क्या है, हैकाथॉन, बैक बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, इनोवेशंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, है ना. सो दीज आर द थिंग्स, जस्ट हैव एन आइडिया. फिर एक इनॉर्मिटी ऑफ क्लाइमेट चेंज इज नो एक्सक्यूज टू रिसॉर्ट टू रिस्की मिटिगेशन स्ट्रेटजीज. अब देखो एक क्या है ना, रिस्की मिटिगेशन स्ट्रेटजी. रिस्की मिटिगेशन मतलब क्लाइमेट चेंज को इम्पैक्ट को रिड्यूस करना. अब दे आर टॉकिंग अबाउट एसआरएम, सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट. उसको सोलर जियो इंजीनियरिंग भी कहते हैं या सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट भी कहते हैं. देखो इसमें होता यह है, समथिंग लाइक दैट होता है कि कोशिश ये किया जाए कि हीट, जैसे हीटिंग है, गर्मी को, ग्लोबल वार्मिंग रिड्यूस करना है. तो इस तरह रिड्यूस करो कि सन के जो रेस है वो कम आए अर्थ पर. सो देयर आर डिफरेंट वेज टू डू दैट. उसमें अपना डिटेल नहीं जा रहे, लेकिन द ऑथर इज क्रिटिसाइजिंग बिकॉज यू आर इंटरफेयरिंग इन द नेचर अगेन. तो अगर एक जगह से कुछ कंट्रोल करे तो दूसरा नुकसान हो सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग कहते हैं आर्टिफिशियल रेन. आप जानते हो ये कॉन्सेप्ट? सो आर्टिफिशियल रेन कराने का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, लेकिन उससे नुकसान भी तो हो सकता है. यू आर इंटरफेयरिंग इन नेचर बाय डूइंग आर्टिफिशियल रेन और बाय कंट्रोलिंग द सन्स रेज एंड ऑल. तो इंसान को मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि बहुत ज्यादा नेचर में इंटरवीन नहीं करना चाहिए, इससे हमको पता नहीं है कुछ और ना हो जाए. देखो जैसे उन्होंने एग्जांपल भी दिया है ना. फॉर एग्जांपल इफ एन एसआरएफ एक्सपेरिमेंट बाय वन कंट्री लीड्स टू मोर रेन ओवर हॉर्न ऑफ अफ्रीका देन एक्सपेक्टेड, इट वुड ट्रिगर अ लोकस्ट स्वार्म एंड इवेंचुअली डिस्ट्रॉयज क्रॉप्स इन पाकिस्तान एंड इंडिया. तो बता ये रहे कि मान लो, जैसे उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए एसआरएम को इंप्लीमेंट किया गया ताकि गर्मी कंट्रोल हो सके. सो इज जस्ट गिविंग एग्जांपल, मे बी अगर इस रीजन में बारिश ज्यादा हो गई, ओवर रेनफॉल हो गया, सो लोकस्ट अटैक हो जाएगा, पेस्ट अटैक और लोकस्ट अटैक हो जाएगा, तो ये सब रीजन में अटैक कर जाएगा नॉन. ओके, लोकस्ट समझते हो ना? इट्स एक्चुअली सॉर्ट ऑफ डिजीज और सॉर्ट ऑफ अ ग्रास हॉपर होता है ये, तो एक तरह का, है ना, एक तरह ग्रास हॉपर होता है जो डिस्ट्रॉय कर देता है क्रॉप को. सो दीज आर द थिंग्स हाँ दे आर टॉकिंग अबाउट. इसमें इतना डिटेल नहीं जाना, बस ये है कि आप ये समझो कि ही इज सेइंग कि वी शुड नॉट इंटरवीन मच इन नेचुरल मैकेनिज्म्स. ठीक है, मतलब हम लोगों ने कुछ इंटरवीन किया, कुछ और किया, हो गया कुछ और, एक जगह को फायदा हुआ, दूसरी जगह को नुकसान हो गया, मे बी समथिंग लाइक दैट. दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट इट, है ना. देयर इज नो करेंटली नो मैकेनिज्म टू होल्ड जियो इंजीनियरिंग गवर्नमेंट अकाउंटेबल टू कंसीक्वेंसेस एंड ऑल. कोई मैकेनिज्म नहीं कि मान लीजिए किसी एक गवर्नमेंट ने किया और उसका इंप्लीमेंट नुकसान किसी और कंट्री में हो गया. So whether there is any provision to punish that country or something like that, तो ऐसा कोई मैकेनिज्म है भी नहीं. Yes, है ना. So मतलब ये बेसिकली वो ये बताना चाह रहे हैं कि intervening much on in nature is not a very good idea and all, है ना. फिर 1.5 डिग्री सेल्सियस वाला पता होगा, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, these things we have discussed it. 3 years of Abraham Accord. Abraham Accord 2020 में CLAT में क्वेश्चन आया था, है ना.
हाँ, सो बेसिकली यूएई और इसराइल के बीच था। अब देखो अब्राहम अकॉर्ड जो है ना और वेस्ट एशिया कॉरिडोर का लिंक है। अब्राहम अकॉर्ड ही है ना, इन दोनों के बीच, मेनली ये दोनों के बीच है। और वेस्ट एशिया कॉरिडोर में तो यही बोल रहा है ना कि यहाँ से शिप से जाएंगे, यहाँ से यहाँ ट्रेन होगा, फिर देन हेयर फ्रॉम एक्चुअली टू द ईस्ट यूरोप। ठीक है, तो ये भी एक तरह का इट्स एक्चुअली पार्ट ऑफ इट। I2U2 हुआ, इंडो अब्राहमिक अकॉर्ड हुआ, अब्राहम अकॉर्ड हुआ, सारा वो वेस्ट एशिया कॉरिडोर का ही लिंक है। ऑल दीज थिंग्स आर लिंक टू ईच अदर, है ना। इसराइल, यूएई, इनफैक्ट बहरैन भी, बहरैन यहाँ पर है, ये यूएई है ना, ये कतर है, इसके ऊपर यहाँ छोटा सा कंट्री है बहरैन। ठीक है, ओके, सो दीज आर द थिंग्स बीइंग टॉक्ड अबाउट एंड ऑल। तो उसमें यूएस का भी रोल था, है ना, यूएस रोल वाज आल्सो देयर एंड फॉर ब्रोकरिंग द डील, है ना। तो ये सब वो बता रहे हैं। मोरक्को ज्वाइन द प्रोसेस साइनिंग नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट, मोरक्को ने भी ज्वाइन कर लिया बाद में, अदर नेशंस हैव आल्सो ज्वाइंड इट। ठीक है, ठीक है, इनफैक्ट आई थिंक इजिप्ट वगैरह और भी नेशंस जो है ट्राई करें ज्वाइन करने की। दैट इज व्हाट ही इज एन एम्बेसडर एक्चुअली, इजराइल एम्बेसडर टू इंडिया, सो ही इज राइटिंग अबाउट दैट। ओके, वुमेन शेयर इन असेंबली इज लेस देन 10% इन 20 स्टेट्स। तो 20 ऐसे स्टेट है जहां पे वुमेन की सीट्स जो है वो 10% से भी कम है। सो दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। तो अगर 33% रिजर्वेशन हो जाएगा, सो मे बी दे आर टॉकिंग अबाउट इट विल बी हेल्पफुल एंड ऑल, है ना। So 1996 में जब HD देवेगौड़ा was the prime minister, the first the concept of women's reservation bill was initiated and all. ठीक है, then है White House backs probe into serious allegation John Kirby and all. White House भाई US president की house, US president office, मतलब जो actually I hope you are aware the issue of India and Canada is happening and all, the allegations and all. Canada has put allegations on government of India and all. So backs probe मतलब जांच होनी चाहिए, that is what they have said. The US President Joe Biden was mindful of the serious allegation made by Trudeau and all. तो बस ये कहा है कि strategic communication से Joe Biden is mindful of the allegations and all, urges India to cooperate with investigation. So India को request किया है कि investigation में cooperate करें and all. That is what they have said. Okay, so let's wait कि in the future what will happen. So 5 eyes वगैरह हम लोगों ने discuss किया है. Okay. Then Australia has also commented serious allegation, says Australia and Trudeau's remark in killing of Niger and all. तो उन लोगों ने भी कहा कि serious allegation है. अब let's see, let's wait for it, what will happen. एक और ये है कि these are the news coming in that perhaps India has requested US president to come for as a chief guest Republic Day. Chief guest at Republic Day. Okay, so this is also in the news and also they are considering it. US is considering it. Let's wait, है ना, देखते हैं. US ambassador to India is 𝗟𝗏𝗴𝗏. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए. Just have an idea about it. Okay. Implement women's reservation bill immediately, says India bloc. ये हम लोगों ने discuss कर लिया है. And they talked about कि OBC reservation should also be there within the women reservation, है ना. Bill passed in Rajya Sabha today. अच्छा, ऐसा है क्या? Okay. So this is all about today's class. So अगर आपने test series ली है, so everyone should attempt it. That would be very very beneficial for you. So this is all about today's class. Please like, subscribe and share this video. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.